Good morning, students. In previous video, we have discussed children that what is the life. Now we see the various property and various things which comes in the form of light, in which what happens. हमने we have discussed that the Snell's law, and I have told you there are two Snell's law. For repeating purposes, we will take you 1 minute. Snell's law, the only valid for refraction. Remember that Snell's law valid for refraction. See children, means the light coming from one medium. Light is going from one medium to another medium. इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे. फिर हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन ने दिया और it was directly associated to, it was the first theory which was assumed by the science ने assume. कॉर्पस्कुलर थ्योरी को छोड़ने के बहुत सारे रीजन हुए, but some things we will bring of corpuscular theory because that theory is very important theory. और उसको हमने सीधा पहला कॉन्सेप्ट उठाया कि all the particle made from the teeny particle and they behaves as a corpus particle and the direction of the corpus particle will be the direction of light. ये चीजें हमने डिस्कस किया और उसी के दौरान हम एक पहला रूल्स लाए रिफ्लेक्शन का कि नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल प्लेन एंड रिफ्लेक्शन कांटेक्ट टू ए सिंगल पॉइंट. मतलब इन चार लोगों का एक चौराहा होगा. इंसिडेंट रे का, नॉर्मल का, सरफेस का और रिफ्लेक्शन का. दे विल बी ये चौराहा. देयर विल बी कह सकते हो कि meeting place where all these three incident, normal, refraction and surface are meeting to each other, and that point is known as children the contact point that is mentioned here by. अब आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि what changes. Snell's law states that when light go from one medium to another medium, children, what happens? Children, you know that light is behaves in many different medium, in many different way, but some things may change speed and velocities. Speed, wavelength is changes. Intensity in both the cases, refraction and reflection both the changes. But the things which will not change, they will. What happens when light go from one medium? I told you, if this is medium and light entered in this one, what happened? What it do with light? ये क्या व्यवहार करता है लाइट के साथ? आज हम डिस्कस करेंगे. मान लीजिए सपोज दैट कि दिस इज चिल्ड्रन सरफेस एंड इट्स रिफ्लेक्टिव एंड स्टडी वी आर डिस्कसिंग लाइट इंसिडेंटिंग ऑन इट, ट्रांसमिटिंग फ्रॉम इट. व्हाट बिहेव्स दे डू विद द नॉर्मल आफ्टर, बिफोर द स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर द इमर्जिंग. बिफोर द इंसिडेंटिंग and after the emerging, what behaves with the light and what happening with the light. अब today we will discuss the whole problem. अब कहेंगे सर कि आखिर लाइट करता है तो बेस टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी करता है लाइट के साथ दैट इज दिस, ये करता है. और यही करने के कारण इसको ही बेटा इसकी ही पावर को, द पावर ऑफ दिस सरफेस वी एज्यूम दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बात समझ में? अब इसी टुडे वी विल डिस्कस द पावर ऑफ दिस सरफेस which mold the light, which turn the light, which bend the light from original incident ray to in different direction of the incident ray. So the power of this surface children is play important. This power of surface play important role. How much it will bend toward the normal or toward the normal?
So depend on the power of surface, and that power study we have, that power is known as the power of the surface, and that is capacity, that is refractive index. So see what happens, children. What happens? Okay, what is happening when something is happening with the refractive index? हम डिस्कस कर चुके हैं कि the second law of Snell's state that Snell's second law, children, Snell's second law is what? Sin I upon sin of incident angle and sin of refracted angle are in a ratio, and the ratio always remains fixed. It doesn't. अब कहेंगे it's a property of material. It's a property of sin, ratio of sin I and psi r is the property of material from which this surface has been prepared, which is transmitting light from one medium to another medium. So remember, it is property of material, means it is a property, as we have discussed that property of material means material. There are classified 5 types of material in the world. So the classification, the value of the material is the refractive index, power of material from which this surface has been prepared. So children, याद रखिएगा कि sin A पर sin A is the power of material which is known as refractive index. वही refractive index होता है. अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन. हम हट जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट. दीज पॉइंट्स आर वेरी सो इंपॉर्टेंट कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं. इस साल भी हुए कुछ एग्जाम, उसमें एक आध पॉइंट आए हुए हैं. तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसके एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. देखो, द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव. कहते दी थोड़ा बोल दीजिए, आपको जो चीज समझ में ना आता टर्म फ्रेगमेंट में करिए. रिफ्रैक्ट एक्टिव मतलब जो रिफ्रैक्ट के लिए एक्टिव हो. इंडेक्स ऑफ वन मीडियम एंड अदर. तो कह रहे हैं कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो लोगों का रोल है. एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का. चिल्ड्रन, आपसे 3 चीज पूछी जाएगी अगर पूछा जाएगा कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव. इसमें 3 चीजें, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाता है. तो जस्ट सी द ब्लैक बोर्ड. कभी कभी मान लीजिए आई दे देते हैं 30 डिग्री और आर दे देते हैं 45 डिग्री. क्या होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नाउ पुट sin 30 इन फार्मूला. sin 30 that is 1/2 sin r इल से sin 45. यहां लिख देते हैं I बराबर 30, R is equal to 45. So we'll write here 45. So sin 45 is equal to 1/2 sin I upon sin R. डिवाइड कर दें बेटा. 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, सॉरी 1 नहीं, ये हो जाएगा आपका, ये दोनों बीच वाले एक साथ हो जाएंगे और √2 ऊपर हो जाएगा. √2 will be cancelled. So we will say √2 can be written as 2 can be written as √2 into √2 एक कट जाएगा और you will get 1/√2. तो sometimes it is asked that what is the refractive index. तो जिन 3 चीजें, अगर if 3 things is 3 things is sin I, sin R और म्यू. तो अगर दो कोई चीज कभी कभी दे देता है, 1 नंबर में प्रश्न, 1 लाइनर प्रश्न आता है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन एंगल इज गिवन, फाइंड द इंसिडेंट एंगल. तो सिंपल सा है, इसमें डिवाइड करके आप निकाल लीजिए. अंडरस्टूड? मतलब दो कोई ना कोई दिया रहेगा, बात समझ रहे हैं, और तीसरा निकालना पड़ता है. फिर भी यदि समझ में ना आए तो देखिएगा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल बनता है कि किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स I और R इतना है, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स I और R इतना है, तो फाइंड μ1 अपॉन μ2. तो एक मीडियम के लिए μ1 1 होगा, दूसरे मीडियम के लिए बेटा μ1 μ2 दूसरा. एंड फाइंड दोनों के डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट लाइक दिस. आप अगर समझना चाहते हैं तो यू कैन सी. देखिए, फॉर वन मीडियम सपोज दैट द वैल्यू ऑफ sin ऑफ एंड सेकेंड मीडियम I2 इज इक्वल टू, मान लीजिए
लीजिए अभी I1 हमने माना था साइन μ1 माना था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में μ1 इज इक्वल टू वी हैव गॉट 1/√2। चलिए अब दूसरे के लिए μ2 मान लीजिए आया आपका 3/2। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन μ2 बाई μ1 पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो वी राइट हियर 3/2 एंड 1/√2, तो आपका 3/2 into √2 एंड वी राइट हियर √2 बेटा, और यहां हो जाएगा 3√3 अपॉन √2 दैट इज √3. तो sometimes it has been asked to remember that you three things are necessary. कभी इनकी रेशियो पूछ देता है, कभी I1, और अगर if question is going in deep, बहुत ज्यादा डीप में जा रहा है क्वेश्चन, तो I1 पूछ देगा और दूसरे का I2 पूछ देगा। अब वो बता देगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, फिक्स हो। तो इतने पॉसिबल कि कभी कभी इसको फिक्स कर देगा, इसको वैरी कराएगा, इसको बेटा म्यू और आई को वैरी कराएगा। कभी कभी इट मे पॉसिबल चिल्ड्रन कि यहाँ आई म्यू और आर को वैरी कराएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कांस्टेंट रहेगा। तो जनरली 3 or 4 टाइम्स प्रॉब्लम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस फार्मूला। देयर कम्स फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड यू कैन सॉल्व इट। थोड़ा सा, बट यू शुड बी क्यूरियस विच इज आस्किंग, बस यू शुड रिमेंबर, यू कैन फाइंड द आंसर। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। अब हमने देख रहे हैं माय एक्सपीरियंस मैक्सिमम मेनी स्टूडेंट डू रॉन्ग क्वेश्चन, मेनी स्टूडेंट डू रॉन्ग क्वेश्चन विद देयर क्वेश्चन चिल्ड्रन। Understood? So we will see that what happens. अब देखिए सी, आइए थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि आई हैव टू हैव अंडरस्टूड दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही म्यू होता है और उसकी पूरी क्राइटेरियाज आई हैव टॉट यू, और आई थिंक यू शुड रिपीट इट, डू रिवीजन वन बाय अगेन एंड अगेन। दिस आर द वे। दूसरा पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिक्स आल्सो, म्यू of optically rare medium is lower, that of denser medium is higher. कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, the refractive index of denser medium is more and the refractive index of rarer medium is very less. अब कहेंगे कि more और less की कहानी प्लीज सर एक्सप्लेन इट कि ये more क्यों। चिल्ड्रन हम डिस्कस कर रहे थे कि mu of denser medium is higher and the mu of the rarer medium is low. मतलब क्या? What is meaning of this one? Mu of denser and mu of rare means denser medium face a lot of trouble. Suppose these are the two mediums. And firstly I put a incident ray, my pen, suppose that my pen is an incident ray. Easily it cross this one. Easily it will penetrate this one. Because this is a rarer medium. Medium का मतलब there are very less amount of obstacle comes in the path of light from where it is penetrating this surface. So very less amount of light which comes to resist this ray of light. तो हम कह सकते हैं कि वी कैन सी दैट दिस इज द रेयर मीडियम। अब कहेंगे कि सर डेंसर मीडियम थोड़ा समझा दीजिए, तो लिसन चिल्ड्रन फॉर दिस वन डेंसर मीडियम, सपोज दिस वन, इफ this is a light wants to penetrate it, there is so many obstacle after obstacle, every page we have like a very less amount of page in this one, very more amount of, so obstacle are more. So obstacle are more, so this light will face more obstacle. And the denser medium, in the case of children denser medium, the refractive index of mu is more than 1, and in case of rarer medium refractive index, कहीं कभी प्रश्न आ जाता है बेटा, देखिए 3/4 sorry 3/2 8/,
6/4, 8/6। इनको डेंसर के मीडियम में घटते हुए क्रम में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डेंसर ऑर्डर में लिखिए। तो क्या करेंगे आप, फाइंड द एलसीएम, वही पुराना ओल्ड रूल, फाइंड द एलसीएम, मेक इट इक्वल और डिक्रीजिंग ऑर्डर में से लिख दीजिए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यू विल गेट आंसर। कभी कभी ऐसा समटाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड कि सर 3/2 और 1/4, इसमें कौन डेंसर मीडियम का है, विच मीडियम इज डेंसर? इसको दे देगा मीडियम नंबर 1, इसको दे देगा मीडियम नंबर 1 एंड इट विल से मीडियम नंबर 2। कह देगा कि विच इज डेंसर, मीडियम नंबर 2 या यहां 1/3 दे देगा, अच्छा रहेगा, कंफ्यूज रहेंगे आप। हियर वी विल राइट 2/3, कंफ्यूज रहेंगे आप कि विच इज डेंसर, एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, यू विल बिकम डेंसर कि 3/2 और 2/2 है। अब कहेंगे कि सर मेनी टाइम्स इन क्लास 10 we have this thing 3/2 and 2/3 also, and which is denser I can't. So children, the value of the mu which is more than 1, see 3/2 more than 1, this is less than 1, so this is the rarer medium. This is the rare medium and this is the children denser medium. This is a denser medium and this is rare medium. So these are the very important children. Now see the next ordinal, that is what? The refractive index of velocity, and in refraction the velocity and wavelength of light it changes. ये तो बता चुके हैं आप, taught you कि in the case of reflection nothing changes, nothing has been changed except the intensity, और उसे तो चेंज होना ही है, that must be changed, that must be changed. But in the case of refraction 5 में से मात्र 3 चेंज होता है। अब इंटेंसिटी को हम थोड़ा दूर के लेना देंगे क्योंकि दोनों में चेंज होता है, तो बड़ी बात है हमारे पास मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 4 है, 4 है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फेज और फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या 2 इसमें चेंज होता है बेटा और 2 चेंज नहीं होता। 2 कहां चेंज होता है वो तो बात की बात है, बट अब कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी और फेज सोर्स पे डिपेंड करते हैं, और अगर सोर्स बदल दिया फेज और फ्रीक्वेंसी तो निश्चित रूप से दोनों चेंज हो जाएंगे, बट ओनली वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 2-4 बार बता चुका हूं। अब देखिए इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी फेज डू नॉट चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी नोटेशन आ जाता है बेटा a mu m is equal to a c air and a c n, that is कहेंगे सर c क्या है? c is the speed of light children, c is speed of light 3 × 10⁸। कभी कभी इसका नोटेशन ये होता है बेटा कि a mu m is equal to lambda a upon mu m, ये होता है, और ये दोनों बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, कभी कभी एग्जांपल में आ जाते हैं, कभी कभी इससे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, तो याद रखिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक। ओके चिल्ड्रन, बाय।